Assalamu alaikum everyone. Welcome to the webinar. Can you, any of the attendees can confirm if they can hear me properly? अगर आप लोग please व्हाट्स उस पे chat पे इसको confirm कर दीजिए और by showing the thumbs up if you can confirm that you can hear me properly. We are going to start shortly in a minute or two, inshallah. So just bear with us. We have to make sure that the attendees who are waiting, they are getting into the room. Okay, Ji. So Nadia, we should start, I think, or we should wait for more people to join. No, you can start now. Alhamdulillah. Okay, Ji. Bismillah karte hain. Okay, guys. I think the whole list. I just need to clarify one thing. If we have mostly Pakistanis and Urdu people who can understand Urdu, the workshop is going to be bilingual, English and Urdu mix. But if we have someone outside who doesn't understand Urdu, please let us know, because otherwise मैं उसमें उर्दू भी शेयर करूंगी, because that's very important कि हम जब बात कर रहे हो तो उसमें जो मिसाल है या कोई चीज़ है उसको हम उर्दू में शेयर कर रहे हो. So जी, let's start. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आप सबको खुशामदीद. Welcome to the exciting workshop or session on cultivating emotional resilience and well-being. A journey towards strengths, boundary and energy balance. So what we are going to discuss today, there is a short session objective flyer on the screen, if you can see that. We are going to cover how to increase the awareness about well-being and emotional resilience. Hoti kya hai? Then the practical tool to manage stress and emotional balance, which is the most important part of the workshop, where we are actually going to discuss the solution side of the story. We are not just discussing the problem, but we are going to give you hand-on experience and solution that can help you become a better in your emotional and mental life. Then mastering boundaries and assertive communication, how to set boundaries, emotional boundaries to just safeguard your emotional well-being. Then learn to identify energy drainers. What are energy vampires? अपनी well-being के लिए energy vampires से कैसे बचा जाएगा? Then personalized reflection and engagement. Inshallah, you are going to learn. And by the end of the workshop, you are actually going to feel a difference, inshallah. But the number one thing that I would going to start the workshop with a few questions. Please take a screenshot of this screen if you want to. Lekin these questions are very important for you to know, and please write down the answer. Achha, one more thing, copy pencil is a must. Please bring your journal, your diary, a copy pencil where you can write down things if there's any, or take a screenshot so that you can revise. Because remember one thing, if you're not going to revisit what we have learned, the learning is going to decline within next 24 hours. So we are going to forget whatever we are learning until we write, until we revise and discuss. So ये questions है कुछ. Nadia, I think I should go bilingual. Is that okay? Because I can't see the chat or any response. So I'm assuming कि मैं इसको mix करूँगी उर्दू English को. Yes, I think there is no one who is outside of the Pakistani Okay, people. got it. ठीक है, बिल्कुल best है. Zabardast. Okay, when was the last time I truly feel grounded, peaceful or connected? Very important question. Self reflection. अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और इसका प्लीज चाहे तो अपने माइंड में, बट आइडियली राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी. When was the last time you truly feel grounded, peaceful and fully connected to yourself, not to the Wi-Fi, to yourself? Number two, what emotion do you or do I usually hide? Please be honest to yourself. Ask it out. What is the one emotion that I usually hide? Deeply inside, I want to express, but I could not. Write down that emotion.
Number 3, who or what drains your energy and why do I still allow it? कौन लोग हैं, कौन से इवेंट्स हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो आपको लो फील कराते हैं? उन लोगों के या उन सोर्सेस के नाम प्लीज लिख लीजिए. Number 4, if my well-being had a voice, if my well-being was a friend, what would it say to me today? मेरी well-being मुझे मेरे बारे में क्या कहती है? Be honest to yourself. I'm not going to ask you to give me answer. These questions are for your own self-reflection. Check what is the answer right now. And one more thing. Please, for a minute, feel the emotion inside you right now and ask yourself, 1 out of 10, मेरा इस वक्त well-being का level क्या है? या excitement या happiness या fulfillment का इस वक्त मेरा level क्या है? 1 minimum, 10 maximum. Please write down, because after the session I'm going to ask you, is there any difference between pre and post session or not? Okay, so if you're feeling okay, normal, average, you can write 5 or 6, but अगर ये ज़्यादा है, बेहतर feel कर रहे हैं, तो you can write 8, 7, or it's very low, you can go up to 2, 3. It's up to you. It's your choice. It's your life, and you have to take full control of your choices. Okay guys, so अच्छा एक बात और, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा प्लीज I'll definitely request to ask me after the session, but if there is something you cannot understand or comprehend, you can ask and Nadia will actually make you unmute to ask your question. So what is well-being? Well-being किसे कहते हैं? वेलबींग, क्योंकि आज हमारा बेसिक जो पूरा टॉपिक है वो इमोशनल रेजिलियंस और वेलबींग के अराउंड घूमेगा. हमें पता तो होगा वेलबींग कहते किसे हैं. वेलबींग इज अ स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी एंड हैप्पी. एंड व्हाट इज द स्टेट? You are going to understand it better when I'm going to discuss the 4 pillars of well-being. 4 वो pillars of well-being जो आप सबको as a टूल यूज कर सकते हैं आप चेक करने के लिए कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ. दे आर द 4 pillars of the well-being जो कि ओवरऑल कंसीडर किए जाते हैं कि इफ यू आर गोइंग गुड इन दीज एरियाज, you are having a better life, a better well-being overall. Number 1, health. Your physical health and well-being. What does that mean? Your physical health and well-being includes आपकी नींद, आपकी डाइट, आपकी exercise routine, and we know that we are supposed to take care of our body. We have to be fit to have a healthy lifestyle. We have to sleep for 4 or 6 to 8 hours for a better sleep. I mean, a healthy sleep actually guarantee a healthy life, because हमारे mostly ब्रेन रिलेटेड जितने काम होते हैं वो उसी वक्त हो रहे होते हैं जब हम सोते हैं. सो ब्रेन इज एक्चुअली वर्किंग हार्डर ऑन ओवरऑल रीजनरेशन ऑफ द सेल्स जब हम सो रहे होते हैं. सो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. दिस इज एन एरिया, हमारे बच्चे दे आर फॉलोइंग बिहाइंड. आई कैन टेल यू कि टीनेजर्स की हेल्थ में उनकी डाइट और स्लीप इज सफरिंग द मोस्ट, बट ओवरऑल इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ योर वेलबींग. एंड let me tell you, we are always concerned and conscious about our health, क्योंकि जब कहीं problem होगी, दर्द होगी, we are actually worrying and we go to the doctor. But the problem comes where? The problem comes when it is about emotions and mental well-being. क्योंकि यहाँ पर हमें उस तरह से पेन नहीं हो रही होती, हम उस पेन को किसी एक्सरे में, किसी मशीन MRI में उस तरह से शो नहीं कर रहे होते, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं नजर आ रही होती, मैं अपनी पेन को उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही होती डॉक्टर के सामने. सो व्हाट वी डू, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. पीपल आर सफरिंग, दे आर सफरिंग इन साइलेंस. लेट मी टेल यू, दिस इज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. आई हैव बीन मीटिंग hundred of people, including students, including females, including different people from different area, because I am a corporate trainer too, so I have to be in touch with the corporate employees as well. So अगर आप corporate employees की बात, professionals की बात करें, housewives की बात करें, working ladies की बात करें, बच्चों की बात करें, we have recently done a whole 5 session leadership program with kids
कल ही मेरा वो सेशंस खत्म हुए एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू सेशन फॉर टीनेजर्स फ्रॉम जुलाई. सो व्हाट वी हैव एक्चुअली नोटिस्ड, मैं इतने इजी माइंड से मेरा प्लेटफॉर्म है, हम पिछले 8-9 साल से इस पे काम कर रहे हैं. So I've been meeting up people from different walk of life and from different nationalities, from different region, including USA, UK, Pakistan, India, Bangladesh, and Arab countries as well. So this is the primary area where people are lagging behind. लोगों को, ख़वातीन को, because this session is primarily for the ladies, for the females. So मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही important area है जिस पे फीमेल्स अपने आप को सबसे पीछे रखा हुआ है, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली. But emotional and mental well-being is very, very important part of your health and you cannot ignore it. We are going to focus on this pillar today mostly. So inshallah, by the end of the workshop, you're going to actually feel that yaar, I have to take care of my thoughts, my mental health, my emotional health. Third pillar of well-being, social connectedness. आपको पता है इंसान को कहते हैं कि इंसान एक सोशल बीइंग है और हम जो हैं हमारे there are few reports, there are few researches जो बताती हैं कि हमारा जो सर्वाइवल है वो 50% तक इम्प्रूव हो जाता है अगर हमारे सोशल स्किल्स अच्छे हों, अगर हमारे इर्द गिर्द लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन बेहतर हो, अगर हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्तेदारी जिसको हम कहते हैं वो बेहतर हो. सो बिकॉज क्यों ये इंपॉर्टेंट है इतना ज्यादा? क्योंकि साइंस हैज प्रूव द डेटा फ्रॉम साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस हैज प्रूवन द रिजल्ट्स के सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस इज लिंक्ड टू अ हायर रिस्क ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन. सो गाइस अंडरस्टैंड कि आपका सोशल कनेक्शन, यू कैन नॉट इग्नोर दिस पार्ट. It's, I mean, and you can see being a mothers, I'm assuming the most of the female who are joining us today, they have experienced this कि being a mother or sister or a teacher, आजकल बच्चों का social connection is on the minimum level, जो कि बहुत बड़ा डिक्लाइन है हमारी वेलबींग की तरफ, इंडिकेटर ऑफ डिक्लाइन टुवर्ड्स आवर वेलबींग. So guys, let me tell you the third pillar of well-being. If you improve your social connection, if you improve your relationship, if you improve your rishtedari, you are going to have better life, a healthy life, where anxiety and depression, the chances of anxiety and depression are minimized, and at the same time आपकी overall health और आपके जो happiness के indicators हैं वो improve हो जाते हैं. We know that अगर अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त बेहतरीन थेरेपी होते हैं, अच्छे दोस्त एक बेहतरीन हैप्पीनेस इंडिकेटर होते हैं हमारी लाइफ में. सो आफ्टर द थर्ड, आर यू गाइज विद मी? अच्छा, मेरे साथ एक इशू ये भी है कि आई वांट अ कंटिन्यूअस फीडबैक दैट व्हेन आई एम टॉकिंग कि लोग हमारे साथ हैं. सो गाइज यू आर विद अस, प्लीज राइट डाउन ऑन द. अच्छा, मैं इसमें बीच में एक छोटा सा नादिया, I'll definitely ask you to please unmute people so that if they want to. जी. Everyone is saying yes, they are with you, and they can unmute themselves and they can say, even if. Okay, great. Yeah, thank you so much. यार, please आप लोग try to talk. बीच में जरूर. I think it's not allowed in. I think unmuting the mic is not allowed during the session, but yes, they are responding allowed us to yes, message. Okay. Yes. I cannot see this chat. So as I've told you that I'm a trainer by profession. So I need a constant feedback that people are there. So thank you so much. You told me that they are there and they are replying and they are online. Okay, guys. So you are with me. If there anything you want to add, please write down on the chat box. And inshallah, after the session, we are going to talk. We are going to interact. और अगर आपका कोई personal भी question होगा, please feel free to ask. We are here to help. We are here to discuss, and it's a closed group. So don't worry. Everything is between us. And the recording will be shared to those who are part of the presentation. Okay, guys, let me get back to the point. Thank you. Third, so we have discussed so far we have discussed 3 pillars of well-being, जिसमें हमने health पे बात की. Health मतलब हमारी sleep, हमारी exercise, morning walks, evening walks. Walk is very important. Going to the nature is very important for our health. फिर हमने emotions की बात की, emotional health की बात की, and we are going to discuss emotional health in detail.
social connection is very important. Last but not the least, your connection with the higher power, with Almighty, your spiritual health. And you know, the science has actually proved वो लोग जिनका spiritual practices होती हैं, people who are involved in prayer, meditation and self-reflection, they actually activate their parasympathetic nervous system, which actually reduce your stress and increase your happy hormones. So this is a proven fact. Alhamdulillah, that's a beauty of faith. Ki this tawakkul, that there is someone, Allah hai, the God is there to help us and to guide us and to support us in one way or other. This faith is the one of the biggest pillar, biggest foundation of well-being, and people who have stronger the faith and tawakkul, the chances for them to go to the depression, anxiety are minimum. So they can go to, but that's a big indicator that they have that spiritual connection and that faith is actually there to guide them. So the next slide, why well-being matters, especially for females. Balancing multiple roles and challenges. तो क्यों मैटर करती है well-being हमारी? सबसे बड़ी रीजन, आज हम बात करें खवातीन की, females की. So let me tell you, there is a book, very famous book, Men Are From the Mars and Women Are From the Venus. So people who are interested to know the difference between physiology and psychology of this both genders, they can go through this book. But let me tell you, we females, we are hormonal beings, and these hormonal changes are directly impacting and showing up on our mental health. So the cycle of stress, fatigue, and emotional fluctuation is occurred due to the hormonal shift like PMS, that menopause and the different hormonal disorders जो कि हमारे overall hormones को impact करते हैं. And that's an open reality कि हर महीने हम एक खास process से गुजरते हैं और उस PMS और different reasons की वजह से हमारे hormones fluctuate कर रहे होते हैं. They are not stable, they are not on the same line as compared to men जिनके साथ ये वाला मामला नहीं है. So that's one of the main reason कि हमें अपनी emotional health का ख्याल रखना है. I'm not saying कि ये hormones आपको total control कर रहे हैं, but if we know our body better, हम अपने आप को बेहतर समझेंगे तो हमें पता होगा कि अब हमने इस मौके पे अपने आप को कैसे soothe करना है, किन किन activities में अपने आप को indulge करना है so that the minimum effect of the hormones happen on us. और हमने meditation को, prayer को, breathing को और different exercises को अपनी life में add करना है to maximize the benefit of emotional well-being. Number 2, safety and anxiety. आप में से कौन ये बताएगा, do you think that female they feel more unsafe than male in our society or in any society? I won't say in our society only, India, Pakistan, but in any society. Do you think that we as a female gender, हम बचपन से ही हमारे safety issues high होते हैं? Yes or no? Write down on the chat. Yes, I think 100% of the people will agree to this point. कि एज अ फीमेल हमें बचपन से, जब हम एक बच्ची बड़ी हो रही होती है और एक बच्चा होता है, द वे सोसाइटी, द पेरेंट्स, टीचर्स, एवरीबडी इज डीलिंग विद अस इज डिफरेंट. तो आपको क्या लगता है, अगर किसी के साथ बचपन से डीलिंग ही डिफरेंट हो रही है तो क्या उससे उसकी एंग्जाइटी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा? और फिर हमारा सोशल मीडिया और मीडिया भी इसमें एक रोल प्ले करता है कि वो भी चीज़ों को इस तरह से हाईलाइट कर रहा होता है कि फीमेल्स दे डोंट फील सेफ. Female, do you know there's a data, American studies हैं, because they actually study a lot, कि females they get more harassment at work as compared to male, sexual harassment and psychological harassment. So this is very it's an open reality. इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि as a female we are more prone to anxiety, not just because of the physiology but because of the situation and condition we are in. हमारा environment हमें anxiety prone कर देता है, हमें biased कर देता है. हमारे लोग हमारे लिए as a leader, देखो if the leader is a female or if the leader is a male, लोग different तरीके से इसको deal कर रहे होते हैं. So this is one of the indicator. Then guys, one of the most important thing about
female is that overthinking and self-criticism. Women are statistically more likely to experience rumination. Rumination किसे कहते हैं? The dwelling on the negative thoughts rather than moving forward. So हमारे अंदर ये tendency कि हम नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा ड्वेल करते हैं, ज्यादा सोचते हैं आगे बढ़ जाने की निस्बत. As compared to men, females they tend to dwell into the negative thoughts more often. This tendency is higher in women. ये चीज हमारे अंदर ज्यादा है. इसकी भी बहुत सी रीजन है, साइकोलॉजिकल, कल्चरल and there's social, so many reasons are there, but we just need to understand that this is the reality, because जब तक हम reality समझेंगे नहीं ना guys, तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकेंगे. You can see a slide where I'm showing you positive and negative asymmetry. ये concept है जिसमें ये कहते हैं कि हमारा brain is designed in a way, and I'm not saying कि मैं सिर्फ अपने आप से कह रही हूँ, I'm telling you on the basis of neuroscience, on the basis of neuroscience data, that human brains are wired for connection, and the human brains are wired in a way that we tend to go to the negative situation more oftenly. What does it mean? अगर आपकी कोई insult करता है और अगर आपका कोई compliment करता है, the chances are insult को आप नहीं भूलेंगे, तारीफ को आप भूल जाएंगे. You agree to this? Yes or no? अपने बचपन को उठा के देखें. अगर मैं अभी आपसे कहूँ पिछले 1 साल में वो इंसिडेंट याद कीजिए जब आपके साथ कोई भी बुरी बात हुई, आपको किसी ने इंसल्ट की या आपके साथ बुरे तरीके से बिहेव किया, आपको वो बात याद होगी मोस्ट प्रोबेबली. लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ वो तमाम तारीफें याद करें जो लोगों ने आपकी की, अगर उन्होंने की, तो जो चांसेस आर दो आपको वो कम याद होंगी. एंड दिस इज नॉट योर फॉल्ट ओनली. मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ? देखो, knowing the fact that the brain is designed in a way that it go to the mental bias, there is a biasness. इसके पीछे एक साइंस है, इसके पीछे एक रीजन है. अल्लाह ने इंसान को जब बनाया, उसको उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी था कि वो रिस्क के लिए अलर्ट रहे, वो नेगेटिव सिचुएशन के लिए अलर्ट रहे, क्योंकि उस वक्त कोई सा भी शेर, कोई सा भी जंगली जानवर, कोई भी दुश्मन किसी वक्त भी इंसान पे अटैक कर सकता था. आई एम टॉकिंग अबाउट द केव, द स्टोन एज पीपल. तो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी था हमारे अंदर ये सिस्टम इंस्टॉल होना ब्रेन में कि हम नेगेटिविटी को, रिस्क को, बुराई को फ़ौरन से कैच कर सके. हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, हमारी बका के लिए ज़रूरी था. सो उस वजह से ये डिज़ाइन इस तरह था कि जब भी कोई रिस्क आएगा हम फटाफट उसको स्कैन कर लेंगे और बचा लेंगे अपने आप को. बट उसका एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब जब हम उस तरह से अनसेफ नहीं है किसी जंगली जानवर या किसी दुश्मन के मामले में, अब भी हमारा ब्रेन इस चीज़ को वैसे ही रिएक्ट कर रहा है. एक नोटिफिकेशन जब हमारे फ़ोन पर आता है या एक छोटी सी खबर जब हमारे किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे आती है, हम उसी तरह से हमारा ब्रेन का सिंपैथेटिक सिस्टम अलर्ट हो जाता है जिस तरह किसी शेर, चीते, सांप या दुश्मन के आने पर होता है. कैन यू बिलीव दैट? Isn't it too difficult situation? So, understanding this concept, now we discuss what is emotional resilience. Emotional resilience कहते किसको है? Because that's the topic of the presentation today. Emotional resilience is the ability to adapt and recover from stress. आप स्ट्रेस से कितनी जल्दी निकलेंगे, आपकी ये सलाहियत डिफाइन करती है आपकी इमोशनल रेजिलेंस. देखिए, एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकें. ये दुनिया है, इसमें मसले, मसाइल, स्ट्रेस सिचुएशन आएगी. द थिंग इज, हमें उसमें से अपने आप को कैसे निकालना है, हमें खुद को कैसे बचाना है. अगर हमने ये सीख लिया, that is the real target of this particular workshop. I can't guarantee you कि आपको बुरे लोग नहीं मिलेंगे, बुरी situations नहीं मिलेंगी, बुरे incidents नहीं आएंगे, problems नहीं आएंगे life में, but I can guarantee you that you can improve your emotional resilience against those problems, and that is a key. That is a key to happiness and fulfillment. So emotional resilience means your ability to adapt to the stress, overcome challenges, and recover from the setbacks with strength and with confidence.
सो अपनी कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप सेटबैक्स को का सामना करते हैं, दैट इज कॉल्ड इमोशनल रेजिलियंस. Emotional resilience help you maintain mental balance in tough situations, allowing you to respond effectively rather than react emotionally. So आप क्या करते हैं जब आप इमोशनली रिजिलेंट होते हैं? आपके पास प्रॉब्लम आती है बट आप उसको फेस करते हैं, आप उस पर सब्र भी करते हैं और आप उसको डील करने की डिफरेंट तरीके भी सोचते हैं, ना कि आप कोलैप्स कर जाएं, ना कि आप शिकवे शिकायतें स्टार्ट कर दें. सो दिस इज द की. And now we are going to discuss the common stressors, external pressures and internal struggles जिससे एक फीमेल गुजरती है. ये क्या क्या कॉमन स्ट्रेसेस हो सकते हैं? अगर आपके माइंड में कोई स्ट्रेसर है, प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी. वी कैन डिस्कस इट आफ्टर द सेशन. एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं किसको है? एक्सटर्नल प्रेशर रेफर्स टू द डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस और इन्फ्लुएंसेस which can create stress or affect how someone feels and behave. So हमारी जिंदगी में क्या क्या एक्सटर्नल प्रेशर है, by the way guys? As a mother, as a sister, as a wife, as a daughter, आपको क्या लगता है हम क्या क्या स्ट्रेस फील कर रहे हैं? Number one, we all know, family responsibilities. हमारी लाइफ में हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो सबसे बड़ा एक सोर्स है जो कि हमें अंडर प्रेशर रखते हैं. हम केयर गिवर भी हैं, हमें ख्याल भी रखना है, हम कुक भी हैं, हम ड्राइवर्स भी हैं, हम एट द सेम टाइम इतने एरियाज पे काम कर रहे हैं एंड प्राउडली काम कर रहे हैं. दैट्स ग्रेट, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस. दैट इज अ एक्सटर्नल प्रेशर इन आवर लाइफ. सोशल प्रेशर्स हमारे पास क्या 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 हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी इंडियन वुमेन, वी नो कि हमारे ऊपर कल्चरल प्रेशर्स इतने ज़्यादा हैं. as a family, as a daughter in law, as a wife, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन हमसे रखी जाती हैं, they create extraordinary pressure in our daily routine life. So ये क्या करती है? ये हमारी इमोशनल रेजिलियंस को डायरेक्टली हिट करती है. अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक तो हमें बचपन से वो ट्रेनिंग नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी, how to deal firmly with emotional resilience and how to deal with the problems, with the stressors. ऊपर से हमें इतने हाई प्रेशर में रखा गया, हमसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रखी गई, which and the behavior of the people around us is causing great kind of stress on us. फिर बहुत से केसेस में खवातीन they are responsible for finances, for they are dealing with their family finances, bills, fees, jobs, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस. उसका प्रेशर अलग होता है. आपका बजट है, आपने कैसे बजट अपना हैंडल करना है, बच्चों की फीस, बिजली की बिल्स और डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स को कैसे आपने डील करना है. दैट्स अ प्रेशर, दैट्स एन एक्सटर्नल प्रेशर. इन्वायरमेंटल प्रेशर्स हैं. हम रोड पर जाते हैं, रास्ते में ट्रैफिक है, शोर है. अभी आप देखें इस पर जिस तरह की अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, टीवी ऑन करें तो वॉर की खबरें, फोन पकड़ते हैं तो वॉर की खबरें. सो वी आर इनटू अ कांस्टेंट प्रेशर. एंड लेट मी टेल यू, इस वक्त जितना प्रेशर और जितना स्ट्रेस हम फेस कर रहे हैं, शायद ही आज से पहले लोगों ने यूनैनिमसली ग्लोबल लेवल पे इतना प्रेशर फेस किया हो. ऐसा जरूर था, कोई कुछ एरियाज वॉर जोन एरिया थे, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे लोग अंडर प्रेशर थे, बट नाउ ऑन अ ग्लोबल लेवल वी आर अंडर स्ट्रेस, वी आर अंडर प्रेशर. सो ये क्या कर रहा है? ये हमारी इमोशनल रेजिलियंस को डे बाय डे डिक्लाइन करता जा रहा है. फिर नंबर 5, अच्छा इसमें जो भी प्लीज क्वेश्चन हो आप नोट करते जाएं, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू योर इंटरेक्शन एंड योर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिलेशनशिप इश्यूज, हम सबको पता है, आई एम अ रिलेशनशिप काउंसलर. मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ पे खवातीन दे आर जस्ट एट द ब्रिक ऑफ द कोलैप्स. वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, जब वो टूट के बिल्कुल तबाह हो चुकी होती हैं, उस वक्त वो कांटेक्ट करती हैं किसी इंसान को हेल्प के लिए, किसी प्रोफेशनल को हेल्प के लिए. इट्स लेट, बट डेफिनेटली आपने ये बात समझनी है कि आपके रिलेशनशिप, स्पेशली हस्बैंड वाइफ एंड डिफरेंट रिलेशनशिप जो भी आपको ज़िंदगी में जो आपको डील करना पड़ता है, उनसे आपने डील किस तरह से करना है, किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, किस तरह से बाउंड्रीज सेट करनी है
रिलेशनशिप में, किस तरह से अपनी सेल्फ स्टीम को हाई रखते हुए अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना है ताकि कोई बंदा आपको मिसट्रीट ना कर सके, कोई बंदा आपको एज अ रग यूज ना कर सके, कोई बंदा आपको एज कर सके। सो इसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही है। ट्रस्ट मी, आवर रिलेशनशिप्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन अस। हम उनको किस तरह से परसीव करके किस तरह से लेके चलते हैं, इस पे बहुत गहरा फर्क पड़ता है कि हम इन रिलेशनशिप पे के लिए अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, हम कितनी कोशिश कर रहे हैं अपने आप पे इन्वेस्ट करने की, अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करने की, अपनी मेंटल हेल्थ पे टाइम और पैसा इन्वेस्ट करने की। वी आर नॉट, आई एम सॉरी टू से, वी आर नॉट। एंड इन सब प्रेशर्स पे बढ़ के एक और प्रेशर है जो कि अगेन यूनिक है पिछले 10-15 साल में, जो कि हमारे ऊपर इस वक्त जेन जी या मिनीलियंस या आने वाले हमारे जो लोग हैं, जनरेशन है, उनके लिए है सोशल मीडिया प्रेशर। आप में से जिसके बच्चे बड़े हैं या टीनेजर्स हैं, दे कैन वेरी वेल रिलेट, बट दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज जस्ट टू द टीनेजर्स ओनली, इक्वली हमारे ऊपर भी अप्लाई करता है। इमोशनल, लोग इमोशनल मास्किंग कर रहे हैं। इमोशनल मास्किंग क्या होती है? आप फील कुछ कर रहे हो बट शो कुछ और कर रहे हो। अंदर से आप डिप्रेशन का शिकार हो बट लोगों के आगे आप हंस रहे हो। अंदर से आप टूटे हुए हो बट लोगों के आप शो कर रहे हो कि आई एम वेरी स्ट्रांग। यू आर फेकिंग इट एक्चुअली। FOMO, fear of missing out. This is a new concept. Every second minute we are thinking अब क्या हो गया होगा, let me check my Instagram, let me check my Facebook, let me check my WhatsApp, अब क्या हुआ होगा, कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ग्रुप में कुछ ऐसा तो नहीं शेयर हो गया जो मैंने मिस कर दिया हो, जो मुझे पता ना चले। The constant anxiety inside our mind is actually called FOMO, fear of missing out. This emotional flux is actually all-time high in these times because we are under the pressure of social media। और ये social media pressure एक और काम कर रहा है, ये हमारे ऊपर एक undue pressure create कर रहा है to look good, to look happy, to have in a certain shape, weight loss, skin care industry is booming on it, weight loss industry is booming on it, everything related to our physique, हम किस तरह नजर आते हैं, सारा फोकस इस वक्त दुनिया का इस एक बात पर है। बच्चियां भी यही सीख रही हैं, बड़े भी यही डिस्कस कर रहे हैं, टीवी भी यही बता रहा है, सोशल मीडिया भी यही बता रहा है। इट ऑल अबाउट हाउ डू यू लुक, it's about your skin, it's about your hair, it's about how do you look, it's about how much weight do you carry, अपना आपका वेइंग मशीन में आपका वेट कितना है, बस यही सब आपकी जिंदगी है। स्पेशली हम खवातीन को इतना टाइटली इसके ऊपर हमें प्रेशराइज किया गया है, एंड आई वोंट से प्रेशराइज किया गया है, इट इज इक्वल प्रेशराइज किया गया है, एंड हमने खुद भी ये प्रेशर लिया है। वी एक्चुअली टेक दिस प्रेशर ऑन अस बाय चॉइस टू, बट जो भी रीजन है, चाहे ये किसी ने किया है या हमने खुद किया है, दिस हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट critical indicator of stress and pressure on a women of 2025। मैं डील करती हूँ, मेरे पास केसेस आते हैं, गर्ल्स एट द एज ऑफ 15, 16, 17, they are suffering with the self worth, they are suffering with the situation जहाँ पे वो अपने आप को पसंद ही नहीं करती। They don't like their face, they don't like their hair, they don't like themselves, they don't like, यकीन करें एक छोटा सा जो मोल है ना फेस पर, उसको भी वो इतना बड़ा करके देख रहा होता है उनका कैमरा कि उनको हर वक्त अपने अंदर खामियां नजर आ रही है। ये क्या है? ये वो अनड्यू प्रेशर्स हैं, along with the relationship, financial, social and other pressures जो अब हमारी लाइफ में ऐड हो चुके हैं। और ये प्रेशर्स क्या कर रहे हैं? ये प्रेशर हमारी जिंदगी में बहुत बड़े स्ट्रेसर का रोल प्ले कर रहे हैं। Guys, you are with me? If there is any question, you can write down on the screen, on the chat box. अच्छा, अब तक हमने क्या डिस्कस किया? अब तक हमने, अच्छा, we are going to wind up इंशाल्लाह
in 1.5 hour, which means हम इंशाल्लाह 3:30 तक इसको क्लोज कर देंगे. Last 15 minutes will be for the question answer. So internal struggles कौन सी हैं? अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टे विद मी. इंटरनल स्ट्रेसेस क्यों मैं ये कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारी ट्रेनिंग से आ रहे हैं. These are part of me or you. These are part of our personalities. These are those personal thoughts, emotions and habits that actually build over the time. वो पहले 10 साल की ट्रेनिंग जिसपे मैं हमेशा बात करती हूँ, they are coming from that time of your life. पहले 15 साल मैक्सिमम हमने जो अपने एक माइंडसेट, एक परसेप्शन बना लिया है, ये वो स्ट्रेसर्स हैं जो कि इंटरनली हमें मुसलसल वीक कर रहे हैं. और अगर हम इन पे अपना काम कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर इमोशनल रेजिलियंस एंड वी आर गोइंग टू वर्क बेटर ऑन आवर मेंटल हेल्थ. नंबर 1, परफेक्शनलिज्म. मैं आपको बिलीव मी अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मेरे पास आने वाले केसेस में से मोर देन 50% केसेस के पीछे लोग परफेक्शनिज्म का शिकार हैं. व्हाट इज परफेक्शनिज्म? हर वक्त हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए. मेरा घर साफ हो, मेरे बच्चे साफ हो, मेरी हर चीज़ सेट हो, मेरी लाइफ परफेक्ट हो, मेरी दावत परफेक्ट हो, मैं जो प्लान कर रही हूँ सब अप टू द मार्क हो, कहीं कोई कमी ना हो. मैं ईमेल लिख रही हूँ तो उसमें कोई एरर ना हो, मैं पीपीटी बना रही हूँ तो उसमें कोई एरर ना हो. ऐसा नहीं हो सकता. वी आर ह्यूमन बीइंग. परफेक्शनिज्म इज जस्ट बिलोंग टू अल्लाह एंड अल्लाह अलोन. दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, तो मैं और आप कैसे हो सकते हैं? या हमारे बच्चे या हमारा घर या हमारे हस्बैंड्स किस तरह हो सकते हैं? बट दिस इज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स. लेट मी टेल यू, perfectionism is a trauma response which comes from the early age, जिसमें हमें कहीं ना कोई ऐसा एस्पेक्ट जो हमें इन फ्यूचर ये शो करता है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे लोग हमें लाइक नहीं करेंगे. People are not going to validate, people are not going to accept us until we reach to our perfect level. अब आपको मेरी बात समझ आ रही है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि मैं कहाँ परफेक्शनिज्म का शिकार हो रही हूँ. Point number 2, self-imposed pressures. Overcommitting, providing your worth and comparison. What does it mean? हमने अपने आप को ओवर कमिट कर लिया है. मेरे अंदर एक स्टेमिना है काम करने का. अगर मैं उस स्टेमिना से ज़्यादा काम करूँगी, इसका फॉल आउट मेरी बॉडी, मेरी मेंटल हेल्थ पे करेगी. अपने आप उतना ही बोझ डालें जितना बोझ आप उठा सकते हैं. एंड कंपैरिजन, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना कंपैरिजन ने हमें किल किया है, जितना कंपैरिजन ने हमारी मेंटल हेल्थ को तबाह किया है इस सोशल मीडिया के दौर में, it has become one of the leading cause of stress, anxiety and depression because we compare ourselves to other people. मैं अपने आप को अपनी different relationships, different friends, different circles से compare करके देखती रहूँ और ये सोचती रहूँ कि मुझे भी up to the mark होना है, मुझे इनसे बेहतर परफॉर्म करना है, मेरे बच्चे इनसे अच्छे नंबर लें, इन बच्चों के ग्रेड्स इनसे बेहतर हो, मेरा घर इनसे बेहतर हो, I look better than them. So it could be anything. इस वक्त मैं आपको जो एग्जाम्पल दे सकती हूँ वो मैं आपको दे रही हूँ, but it could be anything else too. Self doubt. This is one of the leading cause. इस वक्त मैं साथ साथ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ because I have been dealing with people. जो टीनेजर्स मेरे पास आ रहे हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेल्फ डाउट है, लो सेल्फ एस्टीम है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स. दे डोंट बिलीव कि वो भी अच्छा कर सकते हैं. और ये इंटरनली कहीं ना कहीं आ चुका है थ्रू ओवर थिंकिंग, थ्रू रूमिनेशन. कॉन्स्टेंटली अपने वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करते रहना, हर वक्त ये सोचते रहना कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अगर ये हो गया तो फिर क्या होगा, फिर अगर वो हो गया तो फिर क्या होगा, उसने ये कहा तो मैं क्या कहूँगी, फिर मैंने ये कहा तो वो क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, क्या कहेंगे. वी आर कॉन्स्टेंटली इन द लूप ऑफ सेल्फ डाउट. We are constantly in the loop of overthinking, and this overthinking is not letting us sit with calm, with tranquility and with peace with ourselves. And this is an internal struggle. Let me tell you, ये self doubt आपकी personality ने create किया है. Reason आप नहीं थे, but reason जो भी था, it is now part of your personality, your internal dialogue. Fear of change.
हमें हर वक्त एंजाइटी अगेन कि अगर कुछ मुश्किल हो गया तो मैं कैसे डील करूंगी, मुझे अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकलना है। हर बंदा हर वक्त एंग्शियस है फॉर टुमारो, और परेशान है और सोचता रहता है अबाउट पास्ट. So we are juggling between past and future. We are not living in the present moment. We are constantly under the fear of unknown. A fear of unknown which keep us in the loop of anxiety and stress. Unrealistic expectation. हमने अपने बारे में और लोगों ने हमारे बारे में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख ली है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर सकते हैं। ये आपका काम नहीं था कि आप इन एक्सपेक्टेशंस पे हर वक्त पूरा उतरें। ये आपका काम नहीं था कि आप हर वक्त लोगों के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारें, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन वी आर अंडर प्रेशर, दीज आर द इंटरनल स्ट्रेसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेगेटिव सेल्फ टॉक। मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त जितने भी सेशंस करवा रही हूँ, चाहे वो ग्रुप कोचिंग है या 1-to-1 सेशन है, दिस इज द नंबर 1 और मे बी नंबर 2 थेरेपी, नंबर 2 टेक्निक दैट आई गिव टू एवरीबडी। स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव टू योरसेल्फ. Stop talking to that monster who is inside your mind, constantly telling you that you're not enough, that you're not doing to your best, that you cannot do this, तुमसे नहीं होगा। हमें कोई दूसरा क्या ही मारेगा, हम खुद ही अपनी सेल्फ एस्टीम को तबाह कर देते हैं जब हम हर वक्त अपने ऊपर डाउट करते हैं कि क्या मैं भी अच्छा कर सकती हूँ, क्या मुझसे ये हो जाएगा, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ। हर वक्त अपने आप को डाउट कर रहे हैं, हर वक्त अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, हर वक्त अपने आप को नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। एंड बिलीव मी गाइस, टेल इट टू योर किड्स एज वेल, अपने बच्चों को भी बात बताएं। अगर आपने इस नेगेटिविटी के लूप से बाहर आना है, ओवर थिंकिंग से बाहर आना है, आपको अपनी पर्सनल नेगेटिव सेल्फ टॉक को कंट्रोल करना पड़ेगा और इसको रिप्लेस करना पड़ेगा पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, पॉजिटिव अफर्मेशन से। मैं छोटे बच्चों से लेकर 60 साल तक के लोगों को ये बात समझा रही हूँ कि टॉक पॉजिटिव टू योरसेल्फ। चाहे आप उसमें अभी बिलीव नहीं भी करते, फिर भी अपने आप को कहिए कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, आई कैन डू बेटर, आई कैन लर्न बेटर। दिस इज द ओनली वे गाइज, बिलीव मी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। सीखें और लोगों को सिखाएं। हम यही कर रहे हैं ना, व्हाट आई डू, my this the whole process of SPPC having this webinar for the females, यही था कि हम किस तरह अपनी एक्सपर्ट्स फीमेल्स को जो सऊदी में है, पाकिस्तानीज मोस्टली, उनको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। हम में से हर बंदा अपना रोल प्ले कर सकता है। अपने अपने सर्कल और इन्फ्लुएंस पे इन्फ्लुएंस क्रिएट कीजिए। मैंने ये वाली जो जस्ट लेट मी हैव अ वाटर, और आप लोग भी 1-2 घूंट पानी पी लें प्लीज। So you guys can see me, see my screen. नादिया मुझे कंफर्म कीजिएगा बिकॉज मैंने स्टॉप की थी शेयर करना। Yes, all can see. Alhamdulillah. ओके, सो मैंने ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की स्लाइड ऐड की थी जस्ट टू टेल यू कि हमारे जो इंटरनल स्ट्रेसर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। मोस्टली हमारे इंटरनल स्ट्रेसर्स और जो हमारी इमोशनल वेलबींग को ख़राब कर रहे हैं उनका ताल्लुक हमारे चाइल्डहुड से होता है। अनफॉर्चुनेटली 80% से ज़्यादा जो हमारी इस तरह की पर्सनालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से लिंक्ड है। अच्छा, इसमें फिजिकल अब्यूज़ भी शामिल है, इसमें इमोशनल अब्यूज़ भी शामिल है। इमोशनल अब्यूज़ तो कोई अब्यूज़ समझते ही नहीं ना, फिजिकल तो हमें सबको पता है फिजिकल अब्यूज़ किसको कहते हैं, बट इमोशनल अब्यूज़, बात बात पे टोकना, ताना देना, बच्चों को छोटी उम्र में निगलेक्ट करना, उनकी बात ना सुनना, उनको डिसरिगार्ड करना, या कोई ऐसी माँ जो बीमार हो। देखो, इसका मतलब ये नहीं है, बिकॉज जब भी मैं चाइल्डहुड की बात करती हूँ पीपल दे गेट इनसिक्योर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं थे,
ये भी तो इसका मतलब हो सकता है कि उन बेचारे पेरेंट्स को ही पता नहीं था, जो कि हमें भी बहुत काम करना पड़ता है अपनी पेरेंटिंग के ऊपर, कि बच्चों को डील कैसे करना है खुद। और बहुत से केयर टेकर्स ऐसे ऐसे थे जो कि जिनको आइडिया ही नहीं था कि बच्चों को कितनी इमोशनल एंड फिजिकल अटेंशन चाहिए होती है। आपको पता है साइकोलॉजी बताती है बच्चे को एक दफा दिन में कितनी दफा माँ को हक करना इंपॉर्टेंट है। बच्चे को माँ हक करे, स्पेशली जब वो छोटा है। लेकिन बहुत सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। गाइस आई हैड टू पॉज, मैंने अपना एसी बंद किया है। ये एसी भी एक स्ट्रेसर बन चुका था बिकॉज इसकी बहुत आवाज थी। ओके, सो कमिंग बैक टू द, फिर सेक्सुअल अब्यूज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो मैं आपसे जो चीजें शेयर कर रही हूँ, the reason is that along with the training I have an experience of one-to-one counseling and coaching. So I know people जहाँ पे खवातीन they are physically and sexually abused, बहुत छोटी उम्र में हुआ, they don't want to talk about it। जाहिर है कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी रीजंस। आपने शोर शराबा, आपने ट्रॉमा देखा हो, चाहे वो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो, चाहे वो वॉर सिचुएशन हो, चाहे वो कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे वो वालिद का वालदा के ऊपर ऊंची आवाज में बोलना या डोमेस्टिक वायलेंस हो, एवरीथिंग इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स चाइल्डहुड ट्रॉमा। समटाइम कोई बहुत छोटी चीज भी ट्रिगर कर लेती है, जरूरी नहीं होता आपने बहुत बड़ा ट्रॉमा आपके साथ बचपन में हुआ है। बट दीज आर द रीजंस व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू, बिकॉज आई हैव डिजाइन द होल वर्कशॉप इन अ वे कि इट गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ अ अप्रोच टू डील विद द सिचुएशन एंड टू नो कि अच्छा जो भी है मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन हाउ आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका बचपन जो था वो आपके साथ, उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उस बचपन को बेस बना के अगर आप आज भी उन्हीं ट्रोमैटिक पैटर्न्स पे चल रहे हैं तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर नो मोर अ किड। आप वो छोटे बच्चे अब नहीं हैं। सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि हम इन चीजों को उस तरह से देखें कि ये तो बचपन में ऐसा हो गया था, सो अब मैं क्या कर सकती हूँ। बिकॉज आई हैव केसेस जहाँ पे लोग कहते हैं कि मेरा बचपन ऐसा था, मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आई एम अनेबल टू चेंज माई लाइफ। That's not the reality. We are responsible for our lives. Women say they are stressed and misunderstood and alone. APA, American Psychological Association ने 2023 में एक सर्वे करवाया था जिससे उन्होंने ये बताया कि फीमेल्स में का ज्यादातर फीमेल्स का ये ख्याल है कि एज कंपेयर टू मेन हमें अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, हम ज्यादा अलोन फील करते हैं और हम ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं ओवरऑल। सो एंड दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल। सो गाइस, नाउ वी हैव रीच्ड टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वर्कशॉप, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस की। सी प्रॉब्लम्स पे तो सब बात करते हैं, बट प्रॉब्लम का पता होना भी तो जरूरी है ना। सो वंस वी अंडरस्टैंड कि हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस क्या हैं, अब हम उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, वी कैन मेक अ चेंज एट एनी एज, बट द सूनर द बेटर। दैट्स द रीजन I love to work on kids and I appreciate everybody to please 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 जो जितना हो सकता है अपने बच्चे, अपने बहन भाइयों के बच्चे, अपने मोहल्लेदारों के बच्चों पे काम कीजिए, बिकॉज दैट्स द राइट एज टू वर्क ऑन देयर इमोशनल हेल्थ। उनकी एज में काम कर लेंगे, आगे अडल्ट लाइफ उनकी बहुत स्मूथ हो जाएगी इंशाल्लाह। बट अब एट द एज ऑफ 30, 35, 40, 50, 60, अब जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो देयर इज अ रेजिस्टेंस, but that does not mean that we cannot resist to those problems and hurdles. These approaches will help you and actually they are very effective to manage your stress. नंबर वन, मैं हमेशा बात करती हूँ, चाहे मेरा कोई टीवी शो हो, चाहे मेरी कोई पर्सनल गेट टुगेदर हो या मेरी क्लाइंट्स के साथ बातचीत हो, ब्रीदिंग। एंड लेट मी टेल यू, ब्रीदिंग को सब अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि ये वो काम है जो हम 24 आवर्स कर रहे हैं। सो वी थिंक कि इसमें बड़ी क्या बड़ी बात है, ब्रीदिंग कर रहे हैं तो जिंदा है। बट लेट मी टेल यू, डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, आप इसकी एक पिक्चर ले लीजिए। ऑलमोस्ट इन एवरी
Other session I talk about breathings. Breathing is the number one tool to calm you down, to lower down your stress, to lower you down your blood pressure, and to actually activate your parasympathetic system. थोड़ी सी साइंस पता होनी भी जरूरी है, थोड़ा सा अपना ब्रेन भी पता होना जरूरी है. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो सिस्टम है जो हमें काम डाउन करता है, जो एक्टिवली हमारी हमारी ब्रेन फॉग को दूर करता है, जो हमारी बॉडी को, ब्रेन को दोबारा से ब्लड फ्लो को नॉर्मल करता है, कॉर्टिजोल को कम करता है. कॉर्टिजोल इज अ हार्मोन कॉजिंग स्ट्रेस. सो ब्रीदिंग, आई कैन नॉट टॉक इनफ अबाउट ब्रीदिंग. बिलीव मी, डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग में एक खास पैटर्न होता है. इसकी आप पिक्चर भी ले लीजिए, इसको आप गूगल कीजिए, प्रैक्टिस इट एज मेनी टाइम एज पॉसिबल. आई वुड से कि हर नमाज के बाद कीजिए, उससे ये होता है कि आप भूलते नहीं हैं. आफ्टर एवरी सलाह प्रैक्टिस 5 राउंड्स. इनहेल फ्रॉम माउथ, exhale from inhale from nose, exhale from mouth. Do it with me. Inhale from nose, exhale from mouth. नाक से इनहेल करना है, मुंह से एक्सेल करना है. और इसके अलावा भी बहुत सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं. प्रैक्टिस देम एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू. ग्राउंडिंग टेक्निक, आपको पता है जितने लोगों भी एंजाइटी होती है, और जब एंजाइटी एक खास लेवल को ब्रीच कर लेती है तो फिर लोगों को पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको पैनिक अटैक होते हैं. पैनिक अटैक का मतलब यह है कि पैल्पिटेशन हाई हो जाती है, आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज होना शुरू हो जाती है, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, आपकी सांस उखड़ने लग जाती है. सो दिस इज अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ये मेडिकल सिचुएशन है पैनिक अटैक. बट ये पैनिक अटैक में भी, और इवन इफ इट्स देयर इज नो पैनिक अटैक, और आपको सिर्फ एंजाइटी हो रही है और आप बार बार उस नेगेटिव थॉट की तरफ जा रहे हैं, ट्राई दिस टेक्निक. एंड वी आर गोइंग टू ट्राई दिस इन द रूम राइट नाउ. आई वांट दिस सेशन टू बी इंटरैक्टिव एंड हैंड्स ऑन. गाइस, 5 वो चीजें जो आप अपने इर्द गिर्द नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए. मैं अपने कमरे में नोट कर सकती हूँ. देयर इज माय फोन, a cushion on the sofa, a water bottle, a glass, and a mouse near to my laptop. मैंने 5 चीजें नोट कर ली. उसके बाद 4 चीजें जो आप टच कर सकते हैं. You have to touch. I'm touching my laptop, I'm touching my chair, I'm touching my phone, and I'm touching my coat. So 4 चीजें जो मैंने टच की. 3 things that you can hear. 3 ऐसी आवाजें जो इस वक्त आपके कानों में पड़ रही हैं. एक तो मेरी आवाज है, बाकी 2 और देखिए. मैंने तो नोट कर ली. Now 2 things you can smell. Try to smell at least 2 different smells. I'm assuming that you are doing it, each one of you. After smelling 2 things, you just acknowledge 1 thing that you can taste. और अगर कुछ टेस्ट नहीं कर रहे, जो भी इस वक्त आपके अपने माउथ का टेस्ट है, जो इस वक्त आपका अपने मुंह में टेस्ट है, उस टेस्ट को जरा फील कीजिए, टेस्ट कीजिए. So this is, guys, this is 5 4 3 2 1 grounding technique. करती क्या ये टेक्निक? ये आपका पूरा का पूरा फोकस, आपका एंग्शियस माइंड जो इस वक्त रेस के घोड़े की तरह भाग रहा होता है, ये उसको कंट्रोल करके प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है. ये आपको फौरी तौर पे आपकी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करती है और आप प्रेजेंट में आ जाते हैं. तो द मोमेंट आप प्रेजेंट में आते हो तो वो जो नेगेटिविटी का लूप होता है, जो या तो फ्यूचर या तो पास्ट से लिंक्ड होता है, वो ब्रेक हो जाता है. आई एम टेलिंग यू द रीजन बिहाइंड द टेक्निक एज वेल. अदरवाइज बहुत सिंपली मैं आपको बता सकती हूँ कि ग्राउंडिंग टेक्निक क्या है. प्रैक्टिस कीजिए. लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज अ की टू हैव अ फुलफिल्ड, हैप्पी, peaceful life. Cognitive reframing, CBT. I'm a CBT practitioner. हमें सिखाया गया है इस पूरी थेरेपी टेक्निक के अंदर किस तरह आपने अपनी थॉट को रिफ्रेम करना है. बच्चों को जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब बहुत बारिश और बहुत तूफानी बारिश का मौसम है और आप डर रहे हैं बिजली से, उस वक्त आप सोचिए कि जब सूरज निकलेगा तो कितनी प्यारी रेनबो नजर आएगी. So that silver lining that you always look forward. हमेशा बुरी सिचुएशन में से भलाई और खैर को निकालने का नाम है रीफ्रेमिंग.
हम करते क्या है, हम भलाई में से भी बुराई को ढूंढ रहे होते हैं. दिस इज सो अनफॉर्चुनेट. And I'm telling you, the brain is designed in a way. That's why we need to put in double effort to improve. यही तो रिटेस्ट है हमारा दुनिया में आने का. अगर हमारा ब्रेन अल्लाह ने ऐसा बनाया होता जो हर वक्त खैर को ढूंढ रहा होता, हर वक्त सिर्फ अच्छी बात ही कर रहा होता, सोच रहा होता, और शैतान की एग्जिस्टेंस ही ना होती, तो फिर टेस्ट का क्या पर्पस था? अब आपको समझ आ रही है टेस्ट की रीजन? क्योंकि हम नेगेटिविटी इंक्लाइन है. तो अब नेगेटिविटी इंक्लाइन ब्रेन को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, क्योंकि हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचेंगे. अब उस वर्स्ट केस सिनेरियो की थॉट को पॉजिटिव सिनेरियो में बिल्ड करना है, तवक्कुल को बिल्ड करना है. ये सोचना है कि नो, इट्स ओके, कुछ इसकी कोई और भी रीजन हो सकती है. हो सकता है कि अगर वो मेरा फोन नहीं उठा रही, मेरी दोस्त या मेरा हस्बैंड या कोई भी जो वो बिजी हो, नहीं, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं. सो कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग मीन्स और द थॉट रीफ्रेमिंग मीन्स कि जब भी एक बुरी थॉट आए उसको पॉजिटिव थॉट से बदलना है. आप बिलीव ही, मैं आपको वो सारी टेक्निक्स बता रही हूँ जो हम अपने पर्सनल सेशंस में बताते हैं, बट डेफिनेटली पर्सनल सेशंस में हर चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस हो रही होती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी वर्कशॉप से. बट मैंने कोशिश की है कि ये वर्कशॉप इस तरह की हो कि कोई इंसान भी इसको देखकर अपनी ओवरऑल थेरेपी और अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर सके, उसको एक थेरेपिस्ट की जरूरत ना हो. वी डोंट वांट पीपल सफर विद मेंटल हेल्थ. That's why we are sharing with you different techniques that are actually proven by science and psychology and neuroscience. So guys, the important topic, boundaries without guilt. ये बड़ा मसला ख़वातीन का. हम बहुत जल्दी गिल्ट में आ जाते हैं, बहुत जल्दी हम शेम का शिकार हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं अगर ऐसे नो करूंगी तो बुरा लगेगा, वो नाराज हो जाएगा, उनको क्या लगेगा. एक तो जो बचपन से हमें बताया गया ना, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी. बिलीव मी, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम एक्चुअली ट्रेनिंग माय किड्स कि आपने ये परवाह नहीं करनी कि लोग क्या सोचेंगे. यस, ये जरूर सोचना है कि अल्लाह तो नहीं नाराज हो जाएगा. यस, दैट इज अ पैरामीटर, दैट इज द पॉइंट कि आपने ये देखना है कि जब मैं कोई काम कर रहा हूं, कहीं वो अल्लाह को तो नाराजगी या अल्लाह को तो बुरा नहीं लगेगा. अगर वो अल्लाह को बुरा नहीं लगेगा ना, और सारी दुनिया को बुरा लगेगा, तो लग लेने दे बुरा. प्लीज प्लीज build those boundaries, because these boundaries are actually protecting you. Learn to say no. And this is a problem with the teenagers too, because मैं teenagers के साथ काम कर रही हूँ. बज़ाहिर वो बच्चियां इतनी वोकल, इतनी स्ट्रॉन्ग लगती हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू स्टे फर्म व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू स्टे फर्म. बदतमीजी करने को नो नहीं कहते. असर्टिवनेस का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल होते हुए नो करना, दूसरे की रिस्पेक्ट को ब्रीच ना करते हुए उसको बताना कि आई हैव माई बाउंड्रीज, आई अप्रिशिएट द ऑफर, but I need to prioritize my well-being. I am busy at the moment. I will call you when I'm free. इसमें कोई बुराई नहीं है. Time blocking. Schedule dedicated time for yourself. अपने लिए भी टाइम निकालें. हर काम के लिए आपके पास टाइम है. अपनी ज़ात, अपनी मेडिटेशन, अपनी एक्सरसाइज. अच्छा, जब मैं सेल्फ केयर की बात करती हूँ ना, तो लोगों के जहन में पार्लर आ जाता है. आई एम नॉट सेइंग टू गो टू अ पार्लर. आपको जाना है, आप जाइए, बट पहले आप जब एक मजबूत माइंड पे काम करेंगी ना, तो जो बॉडी और फेस और हेयर है वो बहुत बात की बात है. सो वी आर फोकसिंग ऑन द ब्रेन, वी आर फोकसिंग ऑन द माइंड. नोबडी is actually telling the girls and the women कि actual beauty is a beautiful mind. Actual beauty is intelligence. A woman with intelligence is far more superior than a dumb woman who is beautiful. Tell this to your girls as well. Beauty is just, हाँ, मैं जज्बाती ना वे हो रही हूँ कि this is a very important aspect. Emotional boundaries. Limit exposure to draining conversation और टॉक्सिक रिलेशनशिप. जहां जहां आपको लग रहा है कि ये बंदा, ये दोस्त, ये रिश्ता मुझे मुसलसल टॉक्सिक और नेगेटिव बना रहा है, वहां पे लिमिट करना शुरू कर दें, इमोशनल बाउंड्री बनाना शुरू कर दें. मुझे पता है आप इसके बारे में मुझसे क्या सवाल करेंगे, सब यही सवाल करते हैं. व्हेन यू आस्क आई विल आंसर इंशाल्लाह. एनर्जी मैनेजमेंट, अवॉइडिंग इमोशनल बर्नआउट. सो लाइक अ बैटरी,
हमारी भी एक बैटरी है और हमारी वो बैटरी लो हो जाती है जब हम मुसलसल ड्रेन करते चले जाते हैं अपने आप को। कैसे करते हैं, पहले मैं आपसे ये वाली स्लाइड चेंज कर लूं। एनर्जी वैम्पायर्स, सोचिए जरा, नाम लिखिए, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। अपनी जिंदगी में मौजूद एनर्जी वैम्पायर्स का नाम लिखिए। ये कोई इंसान भी हो सकते हैं, कोई सोर्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंसान ही हो, कोई सोर्स भी हो सकता है, जो आपकी इंडिविजुअल्स और सिचुएशंस दैट ऑफन अनइंटेंशनली ड्रेन योर इमोशनल एंड मेंटल एनर्जी, लीविंग यू फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड एंग्शियस, जिनसे मिल के आपको आपको नेगेटिव और भारी भारी फील हो। People who actually make you feel even worse. Recognizing them is a key to step in protecting your emotional health. This is ये वाली जो स्लाइड है ये भी मैंने रात को ऐड की है. It's very important. Write down, guys. मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ. Write down the names of energy vampires so that you know कि इन लोगों से मिलके मुझे नेगेटिव फील होता है. If you're done, we'll get back to this slide. Protect your energy, emotional burnout. Limit overexposure to stressful content. ये हम सबको पता है. As I've told you in the start of the presentation, कि social media detox is very important. हम वो डिटॉक्स वाटर की बात करते हैं, डिटॉक्स डाइट की बात करते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया डिटॉक्स की बात नहीं कर रहे होते कि कुछ अरसे के लिए या तो लिमिट कर दीजिए या उस तमाम लोगों को, उन तमाम साइट्स को चेक करना बंद कर दीजिए जो कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं. वायलेंस, हर तरह का वायलेंस और नेगेटिव न्यूज़. Women are more affected by emotional contagion on social platform. कंटेजियस क्या होता है? हम यूजुअली सोचते हैं वायरस कंटेजियस होता है. अभी कोरोना था, अभी भी जब किसी को कोई वायरल होता है हम कहते हैं इट्स कंटेजियस, सो प्लीज दूर रहो, मास्क पहनो, हाथ धो. क्यों? क्योंकि वो टच करने से लगता है. बट डिड एनीबडी टेल यू इमोशंस भी कंटेजियस होते हैं? आपको पता है कि इमोशंस भी कंटेजियस होते हैं लाइक अ वायरस. अगर आप एक खास ग्रुप ऑफ इमोशनल हाइप में बैठेंगे तो आप भी वही इमोशंस फील करना शुरू कर देंगे. योर कंपनी मैटर्स अ लॉट. द काइंड ऑफ पीपल यू सिट एंड स्पेंड योर टाइम. वो कहते हैं ना, यू आर सम ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद. आप उन 5 लोगों का मजमुआ होते हैं जिनके साथ आप मोस्टली अपना वक्त गुजारते हैं. अब वो जिस तरह के लोग हैं उस तरह की आपकी पर्सनालिटी और आपके माइंडसेट और आपका परसेप्शन बनता चला जाएगा. So think now onwards, think about your emotions as virus. कि अगर मैं अच्छा फील करूंगी तो अच्छा उसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव क्रिएट करूंगी, और अगर मेरी नेगेटिविटी अल्टीमेटली मेरे बच्चों में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे दोस्तों में ट्रांसफर हो के रहेगी. यही वजह है कि वो माएँ जो कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार होती हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ओसीडी या उनके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं. रिचार्ज रिचुअल्स, एंगेज इन एक्टिविटीज दैट रिस्टोर योर एनर्जी. क्या हो सकती है वो? रीडिंग. किसी को पसंद नहीं आती ये बात. रीडिंग, रीडर्स आर द लीडर्स. जो लोग पढ़ते हैं, अपना टाइम रीडिंग पे स्पेंड करते हैं, दे हैव बेटर इंटेलिजेंस. उनकी होती है सोशल बेहतर, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बेहतर होती है, एंड दे आर वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ देयर इमोशनल हेल्थ टू. देन मेडिटेशन, deep breathing, going into the nature, go for a walk alone, have some discussion and talk with a loved one. एक छोटा सा ट्रिप, एक फैमिली वेकेशन जो आपको रिचार्ज कर दे, जो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर दे, जिसपे आप अपना टाइम अपने नेचर के साथ गुजारें, far from this city metropolitan life. That could be a very very important way out
to protect your energy and to recharge your energy. And recognizing the vampires. चाहे वो आपके रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके वर्क रिलेशनशिप में है. So, cultivating emotional self-care. Small daily actions can create long-term emotional resilience. So guys, you are going to after this session, you are going to go and busy with your own routine. But what actually makes a difference? If you make a small little change in your routine और अपना care करना आज से शुरू कर दें. कैसे? Daily affirmations. Remember I tell you about the negative self-talk? ये उसकी एंटीडोट है. जब भी कुछ बुरा हो रहा हो, आपने कहना है आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम सेफ, आई एम केपेबल, आई एम डिजर्विंग फॉर पीस, आई बिलीव इन माई सेल्फ. कोई आपके साथ कितना बुरा डील करे, आपने अपने आप को बुरा डील नहीं करना, बिकॉज लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, बट हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी जरूर है. So daily affirmations should be part of your life. Say it loud, say it before the mirror. शीशे के सामने खड़े होकर अपने बारे में अपनी अच्छी बात कीजिए. रात को सोते हुए, सुबह उठने के बाद, everything is going to be great in my life. This day is going to be great in my life. I mean, as आप कुछ भी कहिए, but वो होना पॉजिटिव चाहिए. Feel the feel. इसमें मैं always बताती हूँ कि accept your emotions as they are. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग करवाते हैं या जब इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई वर्कशॉप होती है, उसमें इस पर डिटेल में बात होती है कि इमोशंस आर टू बी एक्नॉलेज्ड एंड एक्सेप्टेड एज दे आर. अगर आप उनको दबाएंगे, छुपाएंगे, अंडर द रग डाल देंगे, जो कि हमें सिखाया गया कि मट्टी पा दो, तो वो इमोशंस जाएंगे कहीं नहीं, बट वो ग्रज में डेवलप हो जाएंगे. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएंगे. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू एक्सेप्ट द इमोशन इवन इफ इट्स अ नेगेटिव इमोशन. अगर हसद भी आ रहा है ना, उसको आइडेंटिफाई करना सीखें. डोंट से, डोंट डिनाई, डोंट से मैं तो ऐसा सोचती नहीं, मैं तो ऐसा फील ही नहीं करती. अगर फील करते हैं, एक्सेप्ट कीजिए. एक्सेप्टेंस इज अ की टू इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन. सीक ग्रैटिट्यूड. बिलीव मी, जो मैंने 5 बातें लिखी है ना, ये 5 डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं. इन 5 पे 2-2 घंटे, 1.5 घंटे बात हो सकती है. इट्स अ होल न्यू रिचुअल जिसपे और टॉपिक जिसपे हम बात कर सकते हैं. ग्रैटिट्यूड, जितना हमारे दीन में, इस्लाम में ग्रैटिट्यूड पे जोर है, उतना शायद ही किसी दीन में हो. बट साइकोलॉजी कंफर्म्स कि द पीपल हु रिमेन ग्रैटिट्यूड, हु रिमेन ग्रेटफुल, एक्चुअली हैव far more better mental peace and they have chances of successful achievement of the goals. क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, तुम शुक्र अदा करोगे और मिलेगा. अब अगर हम गिला ज्यादा करेंगे तो लाइफ में गिला और मिलेगा, और अगर शुक्र अदा करेंगे तो जिस चीज का शुक्र अदा करेंगे वो चीज ऐड होना शुरू हो जाएगी, और जिस चीज का गिला करेंगे वो चीज लाइफ से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी. चाहे तो आजमा लें. वैसे तो आप सब ने आजमाया हुआ होगा कि जिसके बारे में ज्यादा शोर मचाया, जिस चीज के बारे में ज्यादा गिले शिकवे किए, वो मामला कभी हल नहीं हुआ. यू मस्ट बी स्माइलिंग एट दिस पॉइंट बिकॉज दैट्स अ रियलिटी वेदर वी एक्सेप्ट और नॉट. ग्रैटिट्यूड, बिलीव मी, अगर इसको एज अ रिचुअल करना शुरू कर दें. मैं अभी कल ही मेरे बच्चों के साथ जो टॉपिक था वो ग्रैटिट्यूड पे ही था. तो आई टोल्ड देम हाउ टू राइट थैंकफुल लेटर्स, हाउ टू थैंक योर मदर, योर टीचर एंड द पीपल अराउंड यू, हाउ टू राइट थैंकफुल नोट्स, हाउ टू अप्रिशिएट. तारीफ कैसे करनी है किसी की. हम तारीफ के मामले में बहुत पुअर है. वी डोंट नो. हम बुराई तो फौरन आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन लोगों का शुक्र भी अदा नहीं करते. तो जो इंसानों का शुक्र नहीं अदा करता तो वो अल्लाह का क्या शुक्र अदा करेगा. Mindful moments. Pause throughout the day to breathe and reflect. काम करते करते में, किचन में, अपने लाउंज में एकदम से रुक कर पॉज किया करें, एक गहरी सांस लें और सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, आप किधर है. वो कहते नहीं, चलते चलते गाड़ी, जब आप लंबे सफर पे जा रहे होते हैं, अजान हो गई है. जब आप लंबे सफर पे जा रहे होते हैं तो आपको कभी कभी चेक कर लेना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन ठीक है.
कभी कभी रुक के ठहर के पॉज करके देख लेना चाहिए. Support networks, very important. Again, the company, the people you are connected with, they uplift you, they encourage you. Just wait for a minute. हम इस अजान को वेट कर लें. जी, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस. बस वी आर एट द एंड. हम बिल्कुल 1-2 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे, देन वी गो फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. Okay guys, the support group is very important. Can you hear me? Yes, I guess. Okay. Self-care. Self-care is not selfish. Many women struggle with guilt when prioritizing themselves, fearing that they may neglect others or it's being selfish. However, self-care is not luxury. It's essential for your emotional resilience, physical health and mental peace. As I've told you, self-care का मतलब है अपने ऊपर इन्वेस्ट करना. अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करना नहीं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का मतलब है कि जो अपनी गर्दन से ऊपर दिमाग मौजूद है, वो किसी से मैंने सुना था कि लोग जितना अपनी गर्दन से नीचे पार्ट पे खर्च करते हैं, उसका 20% भी अपनी गर्दन से ऊपर वाले पार्ट यानी अपने ब्रेन के लिए खर्च कर लें, तो उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है. By spending on the books, watching good podcast, listening to such sessions and getting professional help when needed. So coaching और counselors के पास जाना, it's जिस तरह हम पॉलर्स के अपने बुक करवाते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एंड रीड गुड बुक्स. अच्छे लोगों की कंपनी अक्वायर करना. So when women take care of themselves, they can show up more stronger, more focused and more present in their roles, whether as professionals, as caregivers, friends, individual or their personal ambition. So that is the last but not the least. Thank you so much for your time, for your patience to listen to this whole webinar. I just tried to take out some time for the question and answer thing. So please, now I'll stop share ताकि मुझे नजर आए. आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ईमेल एड्रेसेस भी नीचे मौजूद हैं इसमें, और मैं अब शेयरिंग स्टॉप करती हूँ so that I can talk to you guys. वेरी थैंक यू इरम, आपने अपना टाइम निकाला और हमारी कम्युनिटी लेडीज के लिए इस वक्त जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन जो है हमें डिलीवर किया. अच्छा, जिनको क्वेश्चन पूछना है वो अपना हैंड रेज कर लें ताकि फिर हम उन्हें अनम्यूट करेंगे और वो अपना जो भी सवाल है वो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच नादिया. मैं थैंक यू करना चाहूँगी SPPC का भी, जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो सऊदीया में है. सो गाइस, इनको रजिस्टर कीजिए और इनका नेटवर्क, इनका बिकॉज इनके मीटअप्स भी होते रहते हैं और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी को, स्पेशली फीमेल्स को प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने वर्क लाइफ को भी बैलेंस कर सकती हैं और किस तरह हम एक प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं पाकिस्तानियों का लिविंग इन सऊदी अरेबिया. इरम, आप अगर अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देंगी तो फिर हम देख सकेंगे अगर कोई हैंड रेज होगा तो.
जी मैंने कर दिया स्टॉप। हो गया स्टॉप? जी जी, किसी को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज रेज और योर अगर हैंड। चैट में कुछ था, बिकॉज आई डिडंट चेक द चैट। जी, चैट में एक सवाल आया था और उन्होंने पूछा था कि व्हाट इफ यू कैन नॉट अवॉइड सच इमोशनल वैम्पायर्स, देन। इमोशनल वैम्पायर्स को अगर आप अवॉइड ना कर सकें, जी ये क्वेश्चन जिन्होंने भी पूछा है, इट्स नॉट एम्पावरिंग क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना कर सकें। क्यों इस, या तो आप खुद वैम्पायर हैं, आई एम सॉरी, क्योंकि या तो आप वैम्पायर की, आपकी लीग ही वैम्पायर की है ना। तो जब आप खुद पार्ट ऑफ वैम्पायर है तो आपके लिए वैम्पायर्स को छोड़ना मुश्किल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग इट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज समटाइम क्या होता है, हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि उन टॉक्सिक रिश्तों को अवॉइड करना इज अ नेसेसिटी फॉर अस। क्यों? क्योंकि अगर तो वो आपके देखें, अगेन, अगर तो वो हमारे रिश्ते हैं जिसको अल्लाह ने हमारे ऊपर वो रखा हुआ है कि इनको आप नहीं छोड़ सकते, तो भी आप उसको मिनिमम तो कर सकते हैं अपने इंटरेक्शन को। 100% तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर वो आपके फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स को छोड़ने में किसने आपको मना किया हुआ है? या वी जस्ट नीड टू अवॉइड देम। मिनिमम कर दें इंटरेक्शन उनके साथ बातचीत कम कर दें, उनके साथ फोन कॉल्स कम कर दें। इट इवेंचुअली लोग समझ जाते हैं व्हेन यू आर एक्चुअली मेकिंग योर सर्कल मिनिमाइज। तो फिर बड़ा क्लियर इसका मैसेज जाता है लोगों को कि वो मुझसे बात करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। या हाँ, अगर वो रिश्ता आपके शौहर का रिश्ता है, खुदा ना खास्ता, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, या वो ऐसा रिश्ता है जो हर वक्त आपके सर पे है, देन दैट्स अ क्वेश्चन, क्योंकि ये भी तो एक सिचुएशन हो सकती है। वहां पर इट्स अ क्वेश्चन, बिकॉज वो एक बहुत लंबा, क्योंकि उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। बट इन जनरल, फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए किस तरह से अपने सर्कल को, अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करना है। और इन वैम्पायर से पहले तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि लिखें, पहले इनको आइडेंटिफाई करें। जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपको पता होगा, अच्छा ये वो लोग हैं जो मुझे ड्रेन कर देते हैं, जो मेरी एनर्जी सक कर लेते हैं, जिनसे मिलने के बाद मैं हाई फील करने के बजाय लो फील करने लगती हूँ। तो आपने उनसे अब मिलना कम करना है, बातचीत कम करनी है, इंटरेक्शन कम करना है। एंड यू नीड टू सी कि किस तरह पॉसिबल है। जी। एनी अदर क्वेश्चन? किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो वो अपने उस पर लिख सकता है, प्लीज चैट पे लिख दे, बिकॉज आई नो पीपल आर, ये भी तो है ना, हम लोगों के पास क्वेश्चंस होते हैं, बट द फियर ऑफ, जो भी हमने बात की थी, कि एक फियर होता है कि अगर मैं जाके माइक पे बोलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज दैट्स टोटली फाइन, दैट्स व्हाई आई इनकरेज कि आप लिख के बात कर लीजिए। ओके। Okay, so I guess we don't have any question because यस, nobody is asking. दैट्स ग्रेट, Okay, माशाल्लाह, इसका मतलब बहुत अच्छे से सबको सब कुछ समझ आ गया है। Alhamdulillah. और अल्हम्दुलिल्लाह, सेफ्टी इशू है। अच्छा, ये आपने लिखा हुआ सेफ्टी, यस, सेफ्टी। अच्छा, सेफ्टी नादिया इतना बड़ा इशू है कि मैं यूजुअली अपने जो क्लाइंट्स जो भी आ रहे होते हैं, मैंने एक चीज़ नोट की है जो कि सब में ऑलमोस्ट कॉमन है, दे डोंट फील सेफ। और ये बात उनको पता भी नहीं होती कि दे डोंट फील सेफ इनसाइड देयर बॉडी समटाइम, दे डोंट फील सेफ। अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक बच्चा आया जो कहता है मैं अपने अब्बू की मौजूदगी में सेफ नहीं फील करता। इमेजिन करें, एक बच्चा जो अपने बाप, जो कि सेफ्टी फोर्ट होता है बाप बच्चे के लिए, उसकी मौजूदगी में अगर वो सेफ नहीं फील कर रहा, तो उसकी लाइफ में उसके इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है जब वो एक अडल्ट बनेगा। सो बिकम अ शील्ड ऑफ सेफ्टी फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स, एंड एट द सेम टाइम अगर आप सेफ नहीं फील कर रहे तो वर्क ऑन दिस एरिया। साइमा, आपने हैंड रेस किया है। यस साइमा, अनम्यूट। Yes. Assalamu alaikum. वालेकुम Uh, अस्सलाम। it was a wonderful session. I do not have questions, but I would really like to appreciate that what you are doing and what the SP community is doing, because there are so many things which you raised on in this session which people normally do not think.
and I'm being a coach myself, and we actually know each other from our HR forum. So I also believe that one of the most important thing is also to talk to yourself in a positive way. But there's a one technique which I would also want to share with you, because when I was very young, this was shared by my teacher. Sometimes we do not even want to talk to ourselves. Sometimes, we are just ignoring. But हमारी teacher ने हमें एक बात सिखाई थी when we are quite young. I think I was in grade 5. She said, write down when you're very happy and when you're very sad and when you're very stressed out. And Mm. as the passage of time will go on, you sometimes you will laugh on it. Sometimes you will say, well, look what I have achieved, and where I have come to after, fighting with my own self, uh, Mm. f- facing my own fears. तो उसके बाद मैं कहाँ पर आ गई. और ये चीज एक, I think it is a very important and very, very empowering thing. This is the first step, I think, for those people who Yes. find it easier to express themselves when writing. You do not have to share it with anyone. So Yes. you Thank can, you so much, you Saima. have, yeah, you can Thank you be with so much. with your own self. आप देख सकते हैं कि उसको किस तरह से करते हैं. दूसरी, जैसे रम ने कहा कि एक सऊदीया का एक स्पेसिफिक, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ हम जिस एनवायरनमेंट में हैं अभी, it's very open now. So yeah, it's very important for me. जो आपने एक टेक्निक शेयर की, go on walks. So I do that a lot. I do. I mean, यहाँ पे इतना safe और secure environment है कि आप रात को भी जा सकते हो walk पे. Yes, So it true, doesn't true. have to be a long walk. For me, it's for 2 hours, but you don't have to go for 2 hours. You can go, even for half an hour, just have a chat with your friend, or people who you think are more important to you, people who you think can empower you, and also create a support system for yourself, Yeah, which that was the is last point. very, Exactly. yeah, which is very important for whatever you want to do, whatever you want to achieve. If you have a support system, if you have people who believe in you, who are telling you yes you can, so yeah, you should do that. But thank you so much, Iram. You have touched on so many areas, and very important areas, I would say, कि जिसमें आपने बताया कि किस तरह से लोगों को चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहिए. And using, you have used the words very wisely by saying vampires, because a lot of people can, relate to vampires. So yeah, and it is also Blood understandable sucking. that yeah, there are some relationships which are there with you forever. So it's not that always a person always have a very always have a very negative energy, but there are some positive things in a person that you can concentrate on. और अगर Yeah, बहुत ज्यादा exactly. नेगेटिव है, then you have हाँ, to, लेकिन इसमें then you have to एक बात set इम्पोर्टेंट है. in. एक बात आपने बड़ी अच्छी बात की. इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सो मच फॉर द डिटेल आंसर एंड अप्रिशिएटिंग द फोरम एंड द वर्क वी हैव डूइंग टुगेदर. लेकिन एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और जाहिर है पॉजिटिविटी तो अल्लाह ने हर एक के अंदर रखी है, लेकिन हमें ऑन द बेसिस ऑफ दैट चूज करना है. अगेन वही बात, अगर दोस्त है और उसमें 10 में से 7 बुराइयां और 3 अच्छाइयां, तो उन 3 अच्छाइयों को देख के आपको दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है. मेरी बातें थोड़ी अजीब होती हैं बिकॉज आई एम अ फंडामेंटलिस्ट इन अ वे कि आई डोंट बिलीव इन सबको राजी रखना, सबको खुश रखना और Mhm. सबके साथ मिला के रखना. सो दोस्त छोड़े जा सकते हैं. लोगों को, ऐसे लोगों को जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, जस्ट वाइप देम ऑफ, मिनिमाइज देयर रोल इन योर लाइफ. बट यस, जहां पे वो बंदा या वो बंदी आपकी लाइफ का एक पर्टिनेंट पार्ट है, क्वेश्चन वहां पे अराइज हो जाएगा, वहां पे इससे प्रॉब्लम. अदरवाइज आई वुड से अगर Exactly. खूबियां बहुत कम है और खामियां बहुत ज्यादा है, तो ऐसी क्या मजबूरी है आपको उस इंसान के साथ दोस्ती रखने या जिंदगी में लेके चलने की. Exactly. वी हैव अनदर क्वेश्चन. Exactly. But We have another question. yes. Iram, you spoke so well, but when you are angry, most of the time you forget how to control it. Anger management जो है वो एक अलग टॉपिक है, इकरा. लेकिन एंगर मैनेजमेंट में वही छोटी छोटी टिप्स काम करती हैं जो हमें हदीस में भी मिलती हैं. फौरी तौर पर उस जगह को छोड़ दो. खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, और फौरन से पानी पी लो. बात करने से पहले फौरन से पॉज करने की आदत डालो. 1 2 3 4 प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह हमें आदत पड़ जाएगी. वो जगह छोड़ देना मेरे ख्याल है हम फीमेल्स के लिए सबसे आसान है, बिकॉज जब तक हम उस रूम में खड़े रहते हैं ना, हम बोलना नहीं रोकते. तो बेहतर है आप उस रूम को छोड़ के चले जाओ जहां पे आपको गुस्सा आ रहा है, और यू विल सी विद टाइम इट गेट्स बेटर.
इंशाल्लाह। आउज़ बिल्लाह पढ़ना, सुबह शाम की हिफाजत की दुआएं पढ़ना, एवरीथिंग काउंट्स। अच्छा, एक और चीज़ है, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी हेल्पफुल एंड रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड टॉपिक्स यू चोज टू डिस्कस। थैंक यू अमारा, yes, Amara wrote this. Thank you so much, guys. Yeah, I've tried to make it to the point, helpful, crispy for you guys, and I really appreciate your attendance and your interaction throughout. इंशाल्लाह हम इन टच भी रहेंगे और SPPC के साथ भी अपने इसी तरह के फ्यूचर में भी collaborations करते रहेंगे. Thank you for your time and I'll see you inshallah some other time. Stay connected. Assalamu alaikum wa rahmatullah. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू ऑल, आप सबने टाइम निकाला और हमारे लिए जो है वो इस प्रोग्राम में आए। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।